Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our lecture number 8 for Global Business Management and chapter number 4. And we were discussing ethical reasons कि एक मैनेजर क्यों एथिकली बिहेव करेगा या अनएथिकली बिहेव कर सकता है, डेलमा के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, डेलमा को कैसे टैकल करने की कोशिश करता है. So let's start to understand what are the determinants of ethical behavior with reference to any organization in question or situation or dilemma it is facing. Ethical behavior is reinforced by the personal ethics of an individual and the organizational culture in which an individual is working on times there are unrealistic performance goals which are set for that individual in which he or she is supposed to meet them, and then what is the leadership style of that organization and decision making process, is it inclusive in nature or exclusive in nature. इस पर ये 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को force कर सकते हैं to behave in an unethical manner. So let's try to identify one by one. Business ethics reflect personal ethics, basically. My decisions are the reflections of my ethics. What are personal ethics? Generally accepted principles of right and wrong within an organization with reference to an individual's decision-making skills and what is governing the conduct of an individual. So experts may face pressure to violate their personal ethics because they are away from their ordinary social context and supporting culture, and they are physiologically and geographically distant from the parent company. तो इसमें अब एक अंडरस्टैंडिंग ये आ जाती है कि at times I will be forced to behave unethically since I'm away from my native culture या जिस social context का मैं हिस्सा हूँ normally वहाँ से मैं दूर हूँ. एक वजह बात ये हो सकती है जिसकी वजह से मैं unethically behave करूँगा, और दूसरा physically and geographically अगर मैं अपने parent company से दूर हूँ, किसी और मुल्क में ऑपरेट कर रहा हूँ, किसी और दूसरे शहर में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं जहाँ पर शायद मैं अनएथिकली बिहेव करूँ. सेकेंड कंपोनेंट जो मुझे मजबूर कर सकता है अनएथिकल बिहेवियर की तरफ, दैट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड स्टडीज शोज दैट बिजनेस पीपल मे बिहेव अनएथिकली बिकॉज दे फेल टू आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, जो मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ, इज इट मॉरली एथिकली एक्सेप्टेबल इन द कल्चर विच आई एम प्रेजेंट राइट नाउ, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे. इस पे डेलिब्रेशन नहीं होती. सो decisions are made based on economic logic without considerations for ethics. So as being a part of an organization, it's my sole responsibility to look after the economic goals and targets of that organization. At times economic logic will supersede my reasoning and rationale for ethical behavior with reference to an incident or event or a decision which I have to implement within my domain and discretion. Organizational culture, ethical behavior may exist in firms that within an organizational culture. That is the values and norms that are shared among employees of an organization that does not emphasize business ethics. तो पेपर की हद तक तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर डेवलप होता है, बी इट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट और पार्टनरशिप. कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज हो, सपोजली वहाँ पे पेपर की हद तक, डॉक्यूमेंटेशन की हद तक कल्चर जरूर एग्जिस्ट करता है. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है बिटवीन द स्टेटेड SOPs और ग्राउंड रियलिटी भी जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वहाँ पे फिर आकर प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ पे फिर बाइसनेस का एक एलिमेंट निकल आता है या पर्सनल इंटरप्रिटेशन का एक एलिमेंट निकल आता है जिसको मैं जस्टिफिकेशन बनाता हूँ अपने अनएथिकल बिहेवियर के लिए. सो वैल्यूज एंड नॉर्म्स शेप्स द कल्चर ऑफ अ फर्म एंड दैट कल्चर इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अनदर रीज़न जो हो सकता है मेरे अनएथिकल बिहेवियर का, कि वो जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स मेरे लिए सेट कर दिए जाते हैं, डेली टारगेट्स हैं, वीकली टारगेट्स हैं, ईयरली, क्वार्टरली, तो ये अगर मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा हैं या मेरे वर्कलोड से ज़्यादा हैं
So I will try to meet them because at the end of the day, my performance will be evaluated on the basis of the performance with reference to these targets जो मेरे लिए सेट किए गए हैं. अगर ये इंक्लूसिव होता कि मुझसे फीडबैक लिया जाता, मुझसे पूछ लिया जाता, तो मुझे इंक्लूसिव करके अगर ये टारगेट सेट किए जाते तो चांसेस आर कि हम इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में अचीव कर सकते हैं. सिंस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच प्रिवेल करती है तो उसके अंदर इंक्लूसिवनेस का इतना एलिमेंट नहीं है. तो जब मेरे लिए अनरियलिस्टिक टारगेट्स सेट हो जाएंगे तो फिर मैं उनको बाय हुक और क्रॉक अचीव करने की कोशिश करूँगा. तो फिर मोरालिटी जो है वो पीछे चली जाएगी एंड इकोनॉमिक लॉजिक एंड सर्वाइवल ऑफ द जॉब वो प्रायोरिटी बन जाएगी. एक और जो क्रूशल एलिमेंट है जो मुझे इनकरेज कर सकता है अनएथिकल बिहेवियर की तरफ, व्हेन आई लुक एट माई बॉसेस, जो मेरे सुपीरियर्स हैं, अगर वो ही चीट कर रहे हैं, वही डिसीट कर रहे हैं, वही मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो मैं उसको एक जस्टिफिकेशन बनाऊंगा फॉर माई ओन एक्शंस. इट्स समथिंग लाइक ए प्रीचिंग से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है. तो इफ़ माई बॉस वांट फ्रॉम मी कि मैं एथिकली बिहेव करूँ, तो ही और शी इज सपोज टू डिमॉन्स्ट्रेट बाय डूइंग इट फर्स्ट. लेकिन अगर प्रीचिंग है और प्रैक्टिस नेगेट करती है उसको, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. Now let's talk about different available philosophies with reference to ethics of an individual and organization. Several approaches हैं जी. तो बिजनेस एथिक्स को अगर आपने स्टडी करना है, गेज करना है या एजुकेट करना है अपने वर्कफोर्स को, तो ये फिलोसफीज़ को समझना ज़रूरी है. फिलोसफीज़ आप कह लें, स्कूल ऑफ थॉट कह लें, या फॉर दैट मैटर आप इसको गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स कह लें, तो इनका ओरिजिनेट यहाँ से ही होता है. तो स्ट्रॉ मैन वन कैटेगरी जिसके अंदर फ्रैगमेंट डॉक्ट्राइन है, कल्चरल रिलेटिविज्म है, and then we have rightist moralist and naive immoralist. And other classification जो आ सकती है वो utilitarian and Kant की approach है with reference to ethics. And then we have rights theory and justice theory. So we have around about 4 classifications of philosophical approaches to ethics. So let's dig in one by one इनको देखने की कोशिश करते हैं. The very first one, straw man approaches are raised by business ethics scholars primarily for the focus of demonstrating that they offer inappropriate guidelines for ethical decision making in a multinational enterprises. Now यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगेन डॉक्यूमेंट की हद तक SOPs की हद तक हमारे पास एथिकल पॉलिसीज ज़रूर होती हैं, बट उनके अंदर एम्बिग्विटी है एंड मार्जिन ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेशन या उसको कह लें कि अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश उसमें होती है. तो ये जो ग्रे एरियाज है ये फिर मुझे हेल्प आउट करते हैं टू जस्टिफाई माय अनएथिकल बिहेवियर. तो उस सूरत में अगर यहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, ग्रे मैटर्स या ग्रे एरियाज एग्जिस्ट करेंगे उन SOPs में, उन पॉलिसीज़ में जो डॉक्यूमेंटेड हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो उसको फिर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा. तो 4 अप्रोचेज हैं जी. फर्दर स्ट्रॉमैन के अंदर लेट्स सी फ्रेडमेंट डॉक्ट्रिन क्या कहता है. द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज टू इंक्रीज प्रॉफिट एज लॉन्ग एज कंपनी स्टेज विद इन द रूल्स ऑफ लॉ. तो यहाँ पे ना मोरालिटी की बात हो रही है ना एथिक्स की बात हो रही है, सिर्फ एक फोकस है कि एज लॉन्ग एज जो प्रेस्क्राइब्ड लॉज हैं आप उनको पूरा कर रहे हैं तो आपका सोल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. दैट्स इट. You don't have to invest in social development or public welfare की बात नहीं करने की ज़रूरत, philanthropic activities में involve होने की ज़रूरत नहीं है आपको. All you have to do is just stick to the local laws and profit earn करें. That's it. So company should not undertake expenditures beyond those mandated by law and these required for the efficient running of a business. जो दूसरी अप्रोच है विद इन द डोमेन ऑफ स्ट्रॉमैन, दैट इज कल्चरल रिलेटिविज्म. Now this is more like a beliefs with reference to ethics. So the belief that ethics are culturally determined and that firms should adapt to the ethics of the culture in which they operate. So simply put कि जिस कल्चर जिस माशरे में आप जा रहे हैं आप वहाँ के कल्चर को फॉलो कर लें. अगर वहाँ पे मोरालिटी मॉरल करप्शन है, एथिकल डायलेमास एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू फिक्स दोज. आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट कल्चर, उसको आप फॉलो करते जाएं. लाइकवाइज व्हेन इन रोम
do as the Romans do. So this is another encouragement for a business setup कि अगर आप किसी मुआशरे में bribe है या corruption है, उसको मुआशरा अगर justify कर रहा है, तो you should not question their morality, but rather you should be part of the bandwagon, हिस्सा बन जाएं, वो corruption में encourage कर रहे हैं, bribes में, kickbacks में, तो you should also encourage it. That is cultural relativism. Third one is righteous moralist. Now, multinationals' home country standards of ethics are the appropriate ones for companies to follow in foreign markets. पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसकी ब्रांचेस दूसरे ममालिक में भी हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी हैं. तो अगर यहाँ का एक बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाके बिजनेस संभाल रहा है एक उस कंपनी का, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि पाकिस्तान का जो बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिक्स एंड कल्चर्स हैं, दे आर द राइट वंस, एंड आई शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज कल्चर एंड बिजनेस एथिक इन फॉरेन कंट्री. सो this approach is mostly common within developed countries. उनके approach ये है. A naive immoralist is the one if a manager of a multinational sees that firms from other nations are not following ethical norms in a host nation, that manager should not either. अब पाकिस्तान में अगर बाहर की कंपनीज हैं, टेलीकॉम सेक्टर की ही बात कर लें कि वी हैव जोंग है, पॉकटेल किसी ज़माने में होती थी, इंस्टा थी, देन वी हैव मोबिलिंक है, टेलीनॉर है. तो सपोजली अगर टेलीनॉर को मैनेजर देखता है कि बाकी कंपनीज पाकिस्तान में जो हमारे कवानीन हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको अगर पूरा नहीं कर रहे, तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं पूरा करने की. अगेन बैंडवैगन का हिस्सा बन जाओ. So actions are ethically justified if everyone else is doing the same thing. तो अगर तो सारे के सारे एक रोड मैप में जा रहे हैं, एक ही कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो supposedly you are also expected to follow that line. अब आ जाइए जो दूसरी क्लासिफिकेशन थी, उसके अंदर था utilitarian approaches. So idea is to ethics that hold the moral worth of action or practices is determined by the consequences. सो यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि अगर मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ इनके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, जॉब सिक्योरिटी अगर एट स्टेक में है, तो आई विल बी वेरी केयरफुल कि मैं मिसबिहेव ना करूँ, मैं अनएथिकली बिहेव ना करूँ, क्योंकि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे, मेरे डिपार्टमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक्शंस हैव मल्टीपल consequences. Some can be good for your decisions, some can be bad for your organization. So actions are desirable if they lead to the best possible balance of good consequences over bad consequences. तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं अपने SOPs से, लेकिन एज ए रिजल्ट अगर आपको कलेक्टिव बेनिफिट से ज़्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द लॉसेस यू हैव टू फेस, तो यू शुड गो फॉर इट. अब इस प्रॉब्लम के साथ अप्रोच के साथ प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड हैं जी, कि आप बेनिफिट्स को कैसे मेजर करेंगे अपने डिसीजंस को, फिर उसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, दैट कॉस्ट कैन बी टाइम बेस्ड, मॉनेटरी हो सकती है, ब्रांड रेपुटेशन एट स्टेक आ सकती है, एंड अ रिस्क ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन जो आप लेना चाह रहे हैं. एंड दिस पर्टिकुलर फिलोसफी is basically fail to consider the justice system, or just philosophy जो है उसको ये encourage नहीं करती, utilitarian approach. Let's talk about Kant's ethics. Now this philosophy is based on Immanuel Kant, who argued that people should be treated as ends and never purely as means to the ends of others. Simply put, people have dignity and needs to be respected, and they are not machines. यहाँ पे अगेन जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, इज़ इट मैकेनिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक इन अप्रोच. जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म होगा, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होगी, नॉर्मली वहाँ पे मैकेनिस्टिक्स अप्रोच ही होगी. You as a part of a workforce are nothing but a part or tool of a bigger machine, जिसका मकसद ये है कि उसने टारगेट्स अचीव करने हैं. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके पर्सनल ओपिनियंस, फीलिंग्स डजंट मैटर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ Kant's ethics. The third aspect, the third philosophy है, that is rights theory. Now
Now things will expand के लोगों के rights हैं, right of association है, right of assembly है, opinion का एक right है, तो उसके ऊपर censorship नहीं होनी चाहिए. Rights theory dictates that human beings have fundamental rights and privileges that transcend the national boundaries and culture. तो यूनिवर्सल राइट्स हैं, आप किसी भी कल्चर किसी भी दुनिया के हिस्से में हों, कुछ यूनिवर्सल राइट्स हैं फॉर ह्यूमंस, दे शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट पब्लिक प्राइवेट, कोई भी उसका स्ट्रक्चर हो. वो कौन से हैं जी? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स form the basis for the moral compass that managers should by when making decisions that have an ethical component associated with it. Then the idea that some fundamental rights transcend the national borders and the culture was the underlying motivation for UN's Universal Declaration of Human Rights, which is basically specify the basic principles that should always be adhered to irrespective of the culture in which one is doing business. Justice theory focus on the attainment of a just distribution of responsibilities, just distribution of incentives, targets, benefits. तो ये सारे का सारा, now this justice is supposed to be achieved through the requirements and the capabilities of individuals, उनसे जो job और task expect किए जा रहे हैं. One that is considered fair and equitable of economic goods and services. So John Rawls, all economic goods and services should be distributed equally, except when an unequal distribution would work to everyone's advantage. So यहाँ पे impartiality is guaranteed by the veil of ignorance. What is veil of ignorance? Everyone is imagined to be ignorant of his or her particular characteristics. तो अब एक बड़ा स्टैंडर्डाइज यार्ड स्टिक डेवलप कर रहे हो कि मेरी जो वर्कफोर्स है, they are not clear about the capabilities they possess or the skill set they possess, which is not true in today's dynamic environment, but that is again an understanding of the system. So let's talk about what system would people design under a veil of ignorance. So जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है टॉप मैनेजमेंट के लोगों को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी एबिलिटीज और अपने स्किल सेट के बारे में इतना शऊर नहीं है, वहाँ पे आप क्या सिस्टम लेके आएंगे. A system where people would agree that each person is permitted the maximum amount of basic liberty, compatible with a similar liberty for others. So जो आप अपनी ज़ात के लिए डिमांड कर रहे हो वही आपको दूसरों को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. One equal basic liberty in this world. Inequality in basic goods, social goods are to be allowed only if they benefit everyone. That is, the difference principle suggests that inequalities are justified if they benefit the position of the least advantaged persons. यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है बजट बढ़ाती है, बजट में सैलरीज जो बढ़ाई जाती हैं, तो उसके अंदर एक बड़ा स्टैंडर्डाइज यार्ड स्टिक रखा जाता है, दैट इज 10% और 15%, नॉर्मली दैट इज द रेंज. जब वो ऑर्गेनाइजेशंस पे ट्रांसेंड होता है, पास ऑन होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ अप्रोचेस लेके जा सकती हैं कि जो लोअर लेवल स्टाफ है मे बी उनकी सैलरी 10% इंक्रीज कर दी जाए, एंड जो ऑफिसर्स ग्रेड स्टाफ है उनकी सैलरी 5% इंक्रीज कर जाए. ये होता देखा है मैंने, अपने इर्द गिर्द होता देखा है. तो कम्युलेटिवली जब वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट बैक किया जाएगा तो दैट विल बी के 15% ये अक्रॉस द बोर्ड हमने सैलरीज बढ़ा दी हैं. So that can be another example of difference principle. Now let's talk about implications क्या हो सकती हैं managers के लिए. How can manager ensure that ethical issues are considered in business decision? So मैनेजर जब हायरिंग कर रहा है या लोगों को प्रमोट कर रहा है तो उसके अंदर एक एलिमेंट उसने देखना है कि पर्सनल एथिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन क्वेश्चन कितने स्ट्रॉन्ग है. And then they are supposed to build an organization culture that places a high value in ethical behavior of the workforce. Again, managers are expected to make sure that leaders within the business not only articulate the rhetoric of ethical behavior, कि सिर्फ preaching ना हो रही हो, but rather practice भी हो रही हो. And वो जो trickle down effect की term शक्ल जी साहब ने बताई थी,
हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे वो आ सकता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेगी तो जो नीचे वाले लोग हैं वो भी मजबूर होंगे, उनके पास क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि वो फिर उसको नेगेट या क्वेश्चन करें। Another job जो managers की करने वाली है, that it put decision making processes in place, which requires people to consider the ethical dimensions of business decisions. And last aspect जो है managers को with reference to ethics जो develop करना, that is develop moral courage. Moral courage, it's subjective in nature. When I say subjective, I mean कि ये individual to individual vary करेगी, and it is not something कि जो external factors inculcate कर सकते हैं मेरी personality में, but rather this is something जो internally motivated होता है कि मैंने अपने principles पे compromise नहीं करना, what and whenever I'm facing the external pressure. That pressure can be from within my organization, my colleagues, my boss, or even outside the organizations. So as far as my ethics are concerned, अगर वो morally I'm strong, morally strong तो मैं कभी भी उनके ऊपर compromise नहीं करूँगा, तो that will lead towards moral courage, जहाँ पे मैं गलत को गलत कह सकूँगा और सही को सही इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगा। I will stop this lecture here और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। Till then, अल्लाह हाफ़िज़।